NAND as a universal gate. Okay. So do you have any problem from the previous lecture? We need to discuss any topic? Reply. No, sir. Okay. So after that, NOR as a universal gate. This is the topic actually. So NAND and NOR both are the universal gate, and we have seen all the combinations with the NAND gate. Today we will see how NOR is the universal gate. Actually this is the topic which is in the sequence. ये sequence में है. वैसे तो अगर आपको NOR as a universal gate बिल्कुल NAND की तरह proof होता है, अगर कोई problem नहीं है तो we can discuss some other things in the Boolean like canonical, tautology, contradiction, implications. But this is the topic which is in the sequence. So should we discuss this topic or we can do other things? आराम से सोच कर बताइए, ये टॉपिक हम डिस्कस कर लें या फिर बूलियन में कुछ और डिस्कस कर लें? So this topic. NOR as a universal gate. Okay. So how the NOR is a universal gate means we can construct all the gates with the help of NOR gate. Understand? All the 7 gates can be constructed with the NOR also. Similarly, we have seen the NAND as a universal gate. In the same manner, we are going to see NOR as a universal gate. NAND and NOR both are the universal gate. So first of all, again, just a moment, please. 1 minute. Here we will see all the proofs. Okay. I will make the playlist. That work is very important and it is pending actually. Actually, my schedule is very tight. I'm planning to set all the videos, okay, as a playlist. So NAND is the universal gate. This is my proving for today's lecture. First of all, what is NAND gate and how it is, sorry. NAND we have already seen, NOR is the universal gate. Today we are going to see NOR is a universal gate. So how NOR gate is constructed actually? A and B this is basically NOR gate and it produces A plus B whole bar. Understand? A plus B whole bar. This is a NOR gate. Okay. So before entering in the topic again, we have to understand some law. Law are absolutely same. A double bar is equal to A. This is called involution law. And A plus B whole bar can be written like that, A bar dot B bar. This law is called De Morgan law. Most of the people know this law very well, very well. I don't have any doubt in this. But when I applied this law in the large expression, then few students get confused. How this expression immediately came. Okay, so you have to understand this law. It's a very important law. Now, what about this?
do you have any idea what this expression will produce? ये expression क्या result produce करेगी? First of बस all, A into B. it can be written like that. Okay, first it can be written like that. Then after that, you can write down like that. Okay, how it is possible? First of all, I have applied the De Morgan law, and after that, two bars are coming on an individual variable due to reason behind one bar is already, and this big bar is splitting and coming on A and B. After that, the bar to bar will be cancelled and we can write A dot B. Understand? This is absolutely fine. Okay, one more thing. What do you mean by dual pass? Dual pass means A is passing two times, not only a single variable. A big expression A plus B can be passed two times. A dot B pass can be two times. If a same thing is passing into a gate two times, this is called dual passing concept. Like that. Now, what we will receive? A plus A whole bar. Understand? One last law. This is our very important and favorite law. Idempotence. A plus A is equal to A. Mainly in this proving, I am concentrating on plus sign, not on the dot sign. The reason is that the NOR gate produce the plus sign. Just a moment, please. Okay. So let's get started. So A plus A is equal to A. Basically, I am concentrating on the plus sign because NOR gate has to be proved, NOR universal gate. Okay, NOR has to be proved. Okay, now we are in position. अब proving start करते हैं. तो proving start करने के लिए first of all A is passing dual into NOR gate. This is the NOR gate, and what output will receive? मेरे साथ साथ आप भी सोचते रहिए. A plus A, because A is passing two times, so A plus A plus due to NOR gate, and due to NOR gate one whole bar will appear, and A plus A whole bar can be written like that, A bar. I have done nothing, only I have applied the idempotence law. Okay, A plus A will become A due to idempotence, and this big bar will come over on a single variable. What we have done? Actually, this is the first proof. This is the first proof, not using NOR. Understand? This is my first proof. Okay, done. Do you have any problem in this? Now what about second? अब हम second proof करने जा रहे हैं. A dual pass in the NOR gate. This is NOR gate. Okay, and B is also passing in the NOR gate. इस टॉपिक से आपका NAND गेट भी रिवाइज हो जाएगा एज ए यूनिवर्सल गेट. बस आपको इन गेट्स को ही तो रिप्लेस करना है. कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. और यहां पर आपको एक और NOR गेट यूज करना है. ओके, ईच एंड एवरी गेट ओनली मस्ट बी NOR गेट. कोई और दूसरा गेट आप यूज नहीं कर सकते. तो अब यहां पर क्या आउटपुट आएगा? यहां पर आपका आउटपुट आएगा A प्लस A होल बार ड्यू टू डुअल पासिंग. हियर यू विल गेट B प्लस B होल बार
Understand? Now, what output will receive on this point? Okay, I'm writing little bit here. A plus A is coming from upper region as an input, and from the bottom side B plus B whole bar is coming, and due to NOR gate, this NOR gate, plus sign will be there and the whole bar will also be there. This is a big expression we will receive on this point. Now we have to reduce only the repeated law we have to use: idempotence, involution and De Morgan. चौथा लॉ अभी यूज नहीं होना है. ओके, नाउ कैन वी राइट लाइक दैट? ए प्लस ए को हम ए बार लिख सकते हैं. रीजन है आइडमपोटेंस लॉ. बी प्लस बी होल बार को हम लिख सकते हैं बी बार, एंड दिस बिग बार विल कम ओवर ऑन दिस. अंडरस्टैंड? अब यहां पर अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही मेथड है, एंड दैट इज अ De Morgan लॉ. So we have to apply the De Morgan law. How the De Morgan law will be applied? A double bar, because एक बार तो था ही, and the big bar is splitting. This plus will be converted into dot and B double bar. Bar to bar will be cancelled by the involution law, and A dot B will be received as a conclusion. Understand? Now what we have done? On every stage we have to write down like that. And 1 minute. And using NOR. This is my second proof. मतलब AND gate हमने construct कर लिया with the help of NOR gate. AND gate का प्रोडक्ट यही होता है, जब हम A और B को AND से पास करते हैं तो we receive A dot B. So two proof we have seen. Now what about the third proof? Just a moment. Third. Okay. My third proof is A, B passing in NOR gate, and the output will be dual pass into one more NOR gate. Let me check what output will receive. 1 second. So here we can say A plus B whole bar, no problem. A plus B whole bar, because this is the product of NOR gate, and this A plus B whole bar is passing 2 times in this NOR gate. So no problem. A plus B whole bar plus 1 more times A plus B whole bar. 1 second. And due to this NOR gate, the whole complement will be there. Now what we can write? Do you have any idea what we can write? Step by step. A plus B double bar. Very good. Very good. A plus B double bar. But ये step आया कैसे? How? कौन सा लॉ इसके पीछे अप्लाई हुआ? Idempotence law. कैसे? How? You can see this complete thing and this complete things are written 2 times, but they are same thing written 2 times. So when the same thing is written 2 times, 3 times, 4 times, 100 times, so you can write down single time due to idempotence law. Due to idempotence law. Okay.
सो आइडेम्पोटेंस लॉ की वजह से a प्लस बी होल बार आ जाएगा और ये जो बड़ी वाली बार है ये स्प्लिट होकर इस पर आ जाएगी और हम जानते हैं कि बार से बार कैंसिल हो जाता है। तो अगर बार से बार कैंसिल होगा, नाउ यू विल रिसीव्ड a प्लस b। If you have any problem on any point, without any hesitation, you just ask, because you are the responsible for yourself. Okay, now I just want to write what we have done, or using NOR। मतलब हमने OR गेट कंस्ट्रक्ट कर लिया NOR गेट का यूज करके। अंडरस्टैंड, दिस प्रूफ इज डन। अब इसके बाद के जो दो गेट्स हैं, means NOR to NOR and NOR to NAND, they are totally related to these two last two proofs से related है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं this side and just a moment। अगर हमें NOR से NAND बनाना है तो पहले हमें NOR से AND तक आना होगा। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर we have to repeat, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको रिपीट करना ही पड़ेगा अगर आप NOR से NAND बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जब आप NOR से NOR बनाएंगे तो इतना स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज अ इंटरमीडिएट स्टेप। अब हम यहां पर आते हैं और ये स्ट्रक्चर पूरा हमें कॉपी करना है। किसके लिए? NOR से अगर हमें NAND बनाना है। यहां पर स्ट्रक्चर ये है और हम यहां पर कॉपी कर रहे हैं। 1 मिनट। सो हमने A को डुअल पास किया था NOR में और B को भी डुअल पास किया था NOR में। जल्दी हमने आज कवर कर लिया और इसके बाद जो इन दोनों के आउटपुट्स आ रहे थे उनको मर्ज करके एक और NOR गेट में पास किया था। ये हमने किया था and using, see, same structure I have copied over there। तो अगर हमने सेम स्ट्रक्चर कॉपी किया है तो अभी हमने प्रूफ किया है यहां पर इस पॉइंट पर a डॉट बी, हम ऑलरेडी वी हैव डन द प्रूफ। तो हम इस बेस पर, इस प्रूफ के बेस पर यहां पर ऑन दिस पॉइंट आई कैन राइट डाउन a डॉट बी। अगर हम कंटिन्यूसली प्रूफ करते आ रहे हैं तो हम यहां पर a डॉट बी लिख सकते हैं। अब इस a डॉट बी, A डॉट बी का मतलब है कि and, but we don't required and, we required NAND, so we have to dual pass this product once again। So this additional step for NAND। Just a moment please, I am just passing this A dot B as a dual pass। So what output will be received on this point? इस पॉइंट पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? सो A डॉट B प्लस A डॉट B and due to this NOR gate the whole bar will be there। 1 second, this whole bar will be there। Okay, now can you please tell what we can write as a reduction part? A dot B plus A dot B is 2 times, so due to idempotence law we can write down 1 time, and this bar, ये बार जो पहले दोनों पे थी अब वो सिर्फ इस पे आ जाएगी। So this is also a very important proof। This is a NAND using NOR। Just a moment, I am just writing NAND using NOR, very important। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? विच नंबर प्रूविंग वी हैव सीन? 1 मिनट। थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ।
नाउ व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन है हमारा नॉर से नॉर बनाना। तो नॉर से नॉर बनाने के लिए पहले हमें और तक का सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। ये और बन रहा है, तो यहां तक हमको पूरा एज इट इज फॉलो करके, एज इट फॉलो करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां बनाते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सी ए बी, ए बी सी, ऐसे ही तो हमने फॉलो किया था। ए और बी को हमें पास करना है पहले नॉर गेट में, और जो इसका आउटपुट आएगा उसको ड्यूअल पास करना है एक और। तो यहां पर आफ्टर पासिंग इन दोनों स्टेजेस के बाद जो यहां पे हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वही आउटपुट आएगा जो यहां पर हमने सिंप्लीफाई करके लाए थे, ए प्लस बी। ऑलरेडी प्रूफ्ड। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में, मान लीजिए सिर्फ इंडिविजुअल आ जाता, आपके सारे नहीं आते, तो आप इसको एक बार और प्रूफ कर लीजिएगा। जो प्रूफ हमने यहां पे किया है, द सेम प्रूफ कैन बी डन ओवर देयर, यहां पर हो सकता है। और यहां पर आपका आउटपुट आएगा ए प्लस बी, बिकॉज दिस प्रूफ ऑलरेडी वी हैव सीन। अब ए प्लस बी का मतलब होता और, बट और वी हैव ऑलरेडी सीन। अब हमें देखना है नॉर। तो नॉर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा एडिशनल वर्क, इसको आगे ले जा करके एक बार ड्यूअल पास कर दीजिए, और ड्यूअल पास करने के बाद जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा एक्चुअली ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। थोड़ा ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश कीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच, ओके, इसीलिए मैंने सबको साथ में रखा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज दो बार लिखी हुई है, तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, लेकिन बार अपने आप से रिमूव नहीं होती है, तो बार तो यहां पे रहेगी। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन नॉर यूजिंग नॉर, मतलब नॉर का ही यूज करके हमने नॉर क्रिएट कर लिया। 1 सेकेंड, नॉर यूजिंग नॉर, all right, okay, these five gates we have seen from the starting. You can see this is not, this is and number 2, this is or number 3, and हमने इसको पैरेलल में रखा है इसके, तो ये NAND है यूजिंग नॉर, this is nor using nor. Okay, done. Now the last 2 is pending, that is nor to XOR, nor to XNOR, car like structure, याद है ना? उसको भी अभी हम देख लेते हैं। पहले before that I want to ask, do you have any doubt in any proof? Please tell, let me know. Tell me. I'm asking to all No, of you. sir. No, sir. Lot of students are listening and attending the lecture, and I'm asking to everyone, do you have any doubt or any clarifications? No. Okay, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं XOR की प्रूविंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। XOR के लिए आपको मालूम है कि XOR का फुल फॉर्म क्या होता है? XOR का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव OR गेट। मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार और लिख देता हूं हर बार XOR। तो XOR गेट हमारा किस तरह से बनता है और उसका आउटपुट क्या होता है? तो A और B को
अगर हम XOR से पास करें, ये XOR गेट, जितने भी गेट्स आप बनाते हैं, देयर आर 7 गेट्स, सारे गेट्स का स्ट्रक्चर किसी से सिमिलर नहीं है, ऑल द गेट्स आर डिफरेंट। सो इसका आउटपुट आएगा A बार B प्लस AB बार। अंडरस्टैंड? इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? A प्लस इन सर्किल B। अंडरस्टैंड? अब यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है, अगर ये टर्म पहले लिखा और ये टर्म बाद में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि प्लस में है, कोई भी टर्म पहले लिख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, अब हम इसकी प्रूविंग की तरफ जा रहे हैं। तो प्रूविंग के लिए वी हैव टू मेक अ कार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, मैं आपको सिर्फ 5-10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने प्रूविंग की थी उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जस्ट रिकॉल। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया था नैंड में, जो स्ट्रक्चर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया था नैंड में एक्सॉर बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया था नैंड में एक्सॉर बनाने के लिए, और एक स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया था नैंड में एक्सनॉर बनाने के लिए। तो जो स्ट्रक्चर एक्स नॉर बनाने के लिए फॉलो किया था वो यहां एक्सॉर बनने के लिए यूज किया जाएगा, मतलब जस्ट अ लिटिल बिट ऑपोजिट। ओके, 1 सेकेंड, इट विल बी क्लियर व्हेन यू विल सी द एग्जांपल। तो सबसे पहले हम अपना वही कार लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज वन नॉर गेट, और इसके पैरेलल में यहां पर एक और नॉर गेट, इसे आप नॉर गेट ही समझिएगा, बन ये चाहे जैसा भी रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर समवेयर यहां पर ये एक नॉर गेट, इसी से बिल्कुल डायरेक्शन में यहां पर इस जगह पर एक नॉर गेट। अंडरस्टैंड? इतना हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया था किसमें? एक्सऑर बनाने में। लेकिन यहां पर हमें इसे ड्यूअल पास भी करना होगा, उसको अभी हम कर नहीं रहे, बताएंगे, अभी बताएंगे, जस्ट अ मोमेंट, पहले हम इतना फिलअप कर लें। सो ए हमारा इसमें जाएगा एज अ इनपुट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूविंग वी आर गोइंग टू सी, और यही स्प्लिट करके इसमें जाएगा बी। 2-3 बार अगर आप इसे लिख लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो आपसे पहले स्टूडेंट गए हैं उन्हीं ने भी इसको सीखा है और आपको भी सीखना है। ओके, यहां पर अंडरस्टैंड? अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए और कंबाइन करने के बाद इसमें पास कर दीजिए, बस खत्म। अब अगर आपको जरा सा भी 3 लॉ का आइडिया है, आइडेम्पोटेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेम्पोटेंस, डिमॉर्गन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, तो आप प्रूफ कर लेंगे। ओके, 1 मिनट। अब हम इसके स्टेज आउटपुट्स लिखते हैं। तो ए यहां से पास हो रहा है इसमें और बी यहां पर पास हो रहा है, तो इस जगह पर आपका आउटपुट आएगा ए प्लस बी होल बार। इज इट क्लियर? और अब यहां पर इस पॉइंट पे क्या आउटपुट आएगा? ए हमारा आ रहा है अपर साइड से और ए प्लस बी होल बार भी आ रहा है एज ए इनपुट। तो जस्ट अ मोमेंट, ए प्लस
due to NOR gate, and A plus B, बहुत ही स्लो मैनर में हम चल रहे हैं, ये हमारी स्पीड नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपकी समझ में आ जाए, और and this is basically the whole bar. Okay, now what about this situation? यहां पे क्या आएगा? यहां पर आएगा हमारा B, कुछ रटना नहीं है, B प्लस and A plus B whole bar is coming from upper region, and this will be a complement whole. Okay, now what about this point? इस पॉइंट पर क्या आएगा? थोड़ा इसको इधर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? ओके, 1 मिनट प्लीज. यहां पर इस जगह पर हम थोड़ा सा इसको, ओके, A plus meeting will be over in the 5-6 minute. We will reconnect because we are in middle of somewhere. So okay, ये तो हमारा फर्स्ट इनपुट है जो इसमें जा रहा है, और नीचे हमारा सेकेंड इनपुट है. पहले हम दोनों इनपुट्स को लिख लेते हैं. B प्लस A प्लस B बार एंड द होल बार. ओके, एंड आपको मालूम है कि जो नॉर गेट है, नॉर गेट, वो प्लस साइन प्रोवाइड करता है और होल कॉम्प्लीमेंट भी प्रोवाइड करता है. अंडरस्टैंड? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वी कैन डू? अब हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, A प्लस, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है लैंड का तो आप बहुत इजीली कर लेंगे. Okay, and 2 bars will be there, and this plus will be converted into dot. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब जानते हैं and everybody have the idea about the De Morgan law, लेकिन जब हम उसे बड़ी एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग द De Morgan law. ये प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस हमारा डॉट में कन्वर्ट हो गया. अब यहां पर B प्लस A प्लस B बार एंड इसके ऊपर भी 2 बार, ड्यू टू व्हाट? डी मॉर्गन लॉ. अब आप जानते हैं बार टू बार विल बी कैंसल, सो A प्लस B होल बार. Okay, and what about this? B plus A plus, हम सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. What we have done? We have simply done one thing, bar to bar cancellation. Okay, again you are seeing this is the whole bar, A plus B whole bar. तो जैसे ही आपको A plus B whole bar मिले, फौरन आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, डी मॉर्गन. A plus A bar dot and B bar. Can we write like that? Please confirm. And B plus A bar dot. Understand? Okay. अंडरस्टैंड? इसको हम एक ब्रैकेट में अगर इनक्लोज कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा. नाउ अब हमारे पास एक लॉ और भी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आई एम गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस A विल बी एडेड विद दिस, बिकॉज क्योंकि प्लस साइन बाहर है तो हम एड वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड A विल बी एडेड विद दिस. सिमिलरली B विल बी एडेड विद दिस and B will be added with this. Okay, so just a moment please. Here I am going to write A plus A bar dot A plus B bar dot
अब अगर आप सीक्वेंस सेम रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस शुड बी सेम, तो हम ए बार को पहले लिखेंगे। वैसे होना चाहिए था बी प्लस ए बार, लेकिन हम सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, नॉट बी बार, एक्चुअली इट्स ओनली बी, एंड डॉट बी प्लस बी बार। अंडरस्टैंड? Hope you remember one law. The name of the law is complement law. Anybody have any idea? मैं इधर लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब होता है अगर a प्लस ए बार है तो इट कैन बी रिटन लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, ये लॉ है। तो a प्लस ए बार 1 हो जाएगा, डॉट a प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा। 3 to 5 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 3 to 5 मार्क्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही टर्म रहेगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी। अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, अभी ये कुछ हुआ नहीं है, प्रूफ हो रहा है। ओके, टाइम का थोड़ा मुझे ध्यान देना है, ठीक है? ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके बाद वाला इजी है। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं। एक बार एक चीज और हम आपको बता दें, इससे कम स्टेप्स हैं नहीं इसमें, ये रिक्वायर्ड स्टेप हैं, कम से कम स्टेप में मैं लिख रहा हूं। ओके, नाउ प्लीज लुक एट द एक्सप्रेशन। अगेन वी हैव टू अप्लाइड वंस मोर distributive law. A will be multiplied with a bar and A will be multiplied with B. Similarly, B bar will be multiplied by the A bar. Then after that, definitely we will receive some product. Just a moment. So, A dot A bar. A will be multiplied with A bar plus A will be multiplied with B, AB. Okay, plus now this B bar will be multiplied the A bar. So instead of writing the B bar A bar, I am just writing for maintaining the sequence plus and B bar. All right. Now after that, what we can write? A dot A bar is equal to what? 0. Which law? Complement law. AB plus, it's not a lengthy. If you think it's not a lengthy, सारे लॉ हम अप्लाई करते चले जा रहे हैं। We are doing the simplification. Okay, so it's not lengthy, and B dot B bar is 0. Now 0, the property of 0, मैं साइड बाय साइड आपको लॉ बता भी रहा हूं, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी ऑफ 0, the property of 0 means anything added with the 0 will become anything. So we can write AB plus A bar B bar. Can you please tell what we have done? ये क्या प्रूफ हो गया? ये क्या प्रूफ हो गया? प्लीज आंसर। What proof we have done? What proof we have done, my dear students? XOR using NOR. This is XNOR. Agree or not? Agree or not? XNOR. Yes, sir. बट हमें प्रूफ क्या करना था?
हम क्या प्रूफ लेकर चले थे? कैन यू प्लीज? XOR. XOR. तो यहां पर ऑन दिस स्टेज व्हाट वी हैव प्रूव्ड XNOR, बट हमें क्या प्रूफ करना है? XOR. तो जो भी आंसर आ रहा है, वट एवर द आंसर इज कमिंग, उसको एक बार डुअल पास कर दो, उसको एक बार डुअल पास कर दो। तो अभी आपने इस स्टेज पर क्या आउटपुट प्रूफ किया है? हमने आउटपुट प्रूफ किया है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ए बी प्लस ए बार बी बार को डुअल पास कर दो। तो अगर हम ए बी प्लस ए बार बी बार को डुअल पास करेंगे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, हियर आई एम राइटिंग ए बी प्लस ए बार बी बार को हमें डुअल पास करना है। तो डुअल पास का मतलब है यही पूरी चीज एक बार और, प्लीज हम पूरा कनेक्टिविटी के साथ हैं आपके साथ, एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। ए बार बी बार, ये पूरी चीज हमने दो बार लिख दी, बट नॉर गेट इज देयर, सो होल कॉम्प्लीमेंट विल बी देयर। अंडरस्टैंड? आराम से समझना है। यहां पर हमने प्रूफ किया था ए बी प्लस ए बार बी बार। मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ये देखो ए बी प्लस ए बार बी बार, और हम ये कह रहे हैं कि जो चीज आपने यहां प्रूफ की है उसको नॉर गेट के साथ डुअल पास कर दो। तो हमने डुअल पास जब किया तो इस स्टेज पर, दिस इज स्टेज नंबर एक्स मान लो, इस एक्स पर हमको ये आउटपुट मिलेगा। ओके, अब अगर ये आउटपुट मिलेगा तो बहुत ध्यान से देखो, ये पूरी चीज एक ही जैसी चीज दो बार लिखी है। तो अगर कोई भी चीज, चाहे वो एक एक्सप्रेशन हो चाहे वो एक वेरिएबल हो, अगर दो बार लिखी है तो वी कैन राइट डाउन सिंगल टाइम ड्यू टू व्हाट? आइडम्पोटेंस लॉ, आवर फ्रेंड आइडम्पोटेंस लॉ। अब ए बी प्लस ए बार बी बार, अंडरस्टैंड? ये पूरी दो बार लिखा था हमने, इसको एक बार लिख दिया, लेकिन बार रिड्यूस नहीं होगी, बार इस पे आ जाएगी। Now what is this, my dear student? This is the complement of XNOR. And in the previous to previous lecture we have seen the complement of XNOR is always equal to XOR. And the complement of XOR is always equal to XNOR. ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होते हैं। Just only 1 second, please. Okay, now immediately we have to prove this. These are very important proof in our course. AB whole bar. Which law I'm going to apply? Which law I'm going to apply? De Morgan. So this plus will be converted into dot. A bar, B bar, and a whole bar. Understand? Okay. Again, once more, we can apply A bar plus B bar. डी मॉर्गन लॉ पहले लार्ज स्केल पे अप्लाई हुई, अब स्मॉलर स्केल पे अप्लाई हो रही है। एंड ए डबल बार, क्योंकि ऑलरेडी एक बार था। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको चलना है, मैं भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चल रहा हूं। ये अब थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं। ए बार प्लस बी बार एंड व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, ए प्लस बी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बार टू बार विल बी कैंसिल। ना इस सिचुएशन में हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है कि ये दो टर्म है, दीज टू टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग विद दीज टू टर्म्स। 1 मिनट। तो ये ए बार पहले इसके साथ, फिर यही ए बार इसके साथ, फिर ये बी बार सॉरी इसके साथ, और फिर यही बी बार इसके साथ, ऐसे होना है। Please don't get confused, otherwise we will not achieve the output. So A बार जब इसके साथ, तो क्या आएगा? A बार
dot A plus this A bar will combine with this. So A bar B. ठीक है? Understand? Now after that plus, ये कौन सा प्लस साइन है? ये वाला प्लस साइन है. अब ये बी बार इसके साथ, तो हम लिखेंगे सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए ए बी बार प्लस, ये कौन सा प्लस है? ये वाला प्लस. बी बार इसके साथ, तो बी बार. डोंट वरी. ओके, a dot a bar will become 0 and a bar b. And here don't worry about the writing, the feeling is important. A b bar and plus b dot b bar is 0. Understand? So a bar b plus a b bar. This is the final proof. Understand? This is nothing but XOR. And it can also, just a moment, it can also written like that. अब एक small thing आपके साथ discuss करनी है, and this lecture is absolutely over. Okay? Several time, 1000 time, 2000 time, जितनी बार आप चाहे इसको watch कर सकते हैं. After the couple of hours, it will be uploaded on the internet. Okay? No problem. So till board examination, you can watch number of times. This proof is not going to be changed. 1 minute. अगर आपसे कहा जाए कि आपको NOR से X NOR बनाना है, please, repeating sentence, X आपको NOR से X NOR बनाना है, तो आप सिर्फ यहां तक रहेंगे. लेफ्ट हैंड पोर्शन. अगर आपसे कहा जाए कि आपको NOR से X OR बनाना है, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ड्यूअल पास कर देंगे. मतलब यहां तक का जो प्रूफ था वो आपका X NOR था, आपने खुद देखा अभी. और अगर हमने ड्यूअल पास कर दिया तो ये आपका जो प्रोसीजर है इतना, वो ड्यूअल पास का प्रोसीजर है. तो ड्यूअल पास का प्रोसीजर था XOR के लिए. एंड आफ्टर दैट यू हैव सीन, यू आर ऑलरेडी सीइंग दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड XOR. Understand? Okay. So this is all done from my side, and we can close this session. Thanks to all of you. Just a moment. I'm just